Hello, good morning to all of you. I welcome you all to the Study with Home channel. And today in Good the morning, sir. thermodynamics lecture series, we will see the thermodynamic relations, which is unit number third, second part. Right. This topic is very much important for university point of view and competitions because here we are going to study about the thermodynamic relations between Cp, Cv and R and all other kind of relations. So first of all, we will see what is the thermodynamic relations and what is the need of the thermodynamic relations in thermodynamics world or thermal engineering. So in the previous chapters, that is first law of thermodynamics, second law of thermodynamics, entropy generations and all, we have seen that what is the properties like pressure, what is the property like specific volume, what is the properties like temperature, mass, internal energy, enthalpy, entropy and specific heat. So these are the thermodynamics properties which we have studied. These are the thermodynamics properties. Thermodynamics property like pressure, specific volume, temperature, mass, internal energy, enthalpy, entropy and specific heat. These are the thermodynamics properties which we have studied in unit number 2, that is second law of thermodynamics. And some of these are measured experimentally and the remaining are calculated from experimental data. So these may some of these properties may be directly calculated, but there will be some properties which cannot be calculated directly, and to calculate these other kind of properties we have to establish a relationship with other properties like enthalpy, like internal energy, or in this enthalpy. So in such cases, we have to deal with some other properties, right? So in order to calculate the properties that cannot be measured directly, certain thermodynamic relations are required. Like we have seen that H is equal to U plus PV. So to calculate enthalpy, we will have to rely upon internal energy as well as pressure and specific volume. So you cannot directly calculate enthalpy, but you can calculate directly temperature, pressure, specific volume, mass and etc. Right. So to calculate other kind of properties, we will have to establish a relationship with other thermodynamics properties. So these relations are developed and discussed in this chapter, right? So in the chapter that is thermodynamic relations, we are going to study about all these kind of properties and their relations with the help of two equations, that is Gibbs equation, and Maxwell equation. So we are going to see Gibbs equation and Maxwell equation in exclusive manner. Correct. So let's see what is the relationship between all these properties. So first of all, we will see Helmholtz and Gibbs function, which we have already studied, but today we will study the entire relationship. So already we have seen that there are some relations between enthalpy, entropy, first law of thermodynamics like heat, work done, and internal energy. So let's see what is the relationship between other kind of properties. So for to establish and to understand all these kind of relationships, we have to introduce Helmholtz, and it is called Helmholtz and Gibbs function. It is Helmholtz and Gibbs function, right? These are the new functions which is used in problems related to chemical equilibrium and combustion. So these are used in chemical equilibrium and combustion, right? And combustion. Which one? Helmholtz and Gibbs functions. So the Helmholtz and Gibbs functions are extensive properties. These are the extensive property. Extensive means mass dependent. Extensive property means
mass dependent, means whatever the property will be, that will be dependent upon the mass, right? So these are expressed as, so Helmholtz function is expressed with F, that is internal energy minus temperature and entropy. This is the formula for Helmholtz function. And Gibbs function, which is denoted by G, and relationship is enthalpy minus temperature into entropy. So this is the two relationship which you have to remember, right? ये हम देखते हैं कि हेल्महोल्ट्ज फंक्शन और गिब्स फंक्शन का रिलेशन है. ये आपका हेल्महोल्ट्ज फंक्शन है. कौन सा है ये? हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, याद रखिएगा, कॉम्पिटिशन्स में आते हैं. और ये है आपका गिब्स फंक्शन. ये है Gibbs function. So we have been given two functions, that is Helmholtz and Gibbs function. These are extensively used in chemical equilibrium and combustion kind of properties, and these are the extensive property, means mass dependent, right? So this is the total values, but when we talk about the specific values, we will have to divide these Helmholtz and Gibbs function with mass. So if you divide this with respect to mass, because it is an extensive property, so it depends holistically upon mass. So when you divide F and G with respect to mass, what we will get? This will be smaller f will be equal to specific internal energy minus temperature into specific entropy, and this is G, that is Gibbs function, will be specific enthalpy minus temperature times specific entropy, right? So this is the formula for specific Helmholtz and Gibbs function, correct? But we have seen that to derive Gibbsian equation using the first and second law of thermodynamics. Now we will go for the first law and second law of thermodynamics. आप लोगों ने फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ पढ़ा हुआ है, और हम देखेंगे कि फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का अप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन किस तरह से बन करके हमारे पास आता है, राइट? तो आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जहां पर हमने पिस्टन सिलेंडर डिवाइस देखा था, अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत याद हो तो मैंने आप लोग को बताया था कि अगर ये एक पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है, ये अगर आपके पास यहाँ पर कोई एक पिस्टन और सिलेंडर डिवाइस है, ये अगर आप यहाँ पे कोई हीट अप्लाई करते हैं तो क्या होगा? देयर विल बी सम चेंज इन इंटरनल एनर्जी एज वेल एज देयर विल बी सम वर्क डन, राइट? तो ये आपका जो हीट सप्लाई होगा इसमें, ये हीट सप्लाई होगा इस गैसेस मीडियम में, तो क्या होगा यहाँ पे? क्योंकि वॉल्यूम का चेंज हो रहा होगा यहाँ पर, ये आपका वॉल्यूम का चेंज, उसकी वजह से हीट सप्लाई आपका दो चीज में कन्वर्ट होगा, वर्क डन देगा और चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा. तो यहाँ से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, इसको हमने डिस्कस किया था. तो डेल क्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये चीज हम लोगों ने देखा है, राइट? इसका मतलब डेल क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा यू, करेक्ट? और साथ में हमने देखा था कि एंट्रोपी चेंज के लिए जब हम देखते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, तो डेल क्यू वाज इक्वल टू टी टाइम्स डी एस. ये चीज हम लोगों ने पढ़ा है. कहाँ पर पढ़े थे? आप लोग को याद होगा जब हम लोग फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन, फर्स्ट टीडीएस और सेकेंड टीडीएस इक्वेशन, और आप लोग को मैंने वहां बताया था कि गिब्स फंक्शन और हेल्महोल्ट्ज फंक्शन इसको बोलते हैं, और आगे हम लोग पढ़ेंगे, करेक्ट? तो ये आपका डेल क्यू हो गया जो कि टीडीएस के बराबर है, और ये डेल डब्ल्यू है, इसको हम लोगों ने पढ़ा है पीडीवी, यानी टोटल वर्क डन जो आपका होगा पीडीवी, करेक्ट? वॉल्यूम वर्क डन विल बी इक्वल टू प्रेशर टाइम्स चेंज इन वॉल्यूम, ये चीज पढ़ा है, राइट? अब ये दोनों वैल्यू को यूज करो, कहाँ पे? ये डेल क्यू और ये डब्ल्यू, डेल डब्ल्यू, ये दोनों चीज को यहाँ पर और यहाँ यूज करोगे तो आपको डेल यू मिल जाएगा. तो डेल यू क्या मिल जाएगा इस तरीके से यहाँ से? तो डी यू विल बी इक्वल टू टी डी एस, डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस डेल डब्ल्यू इज पी डी वी, सो इट इज पी डी वी,
तो du विल बी इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी, ये आप लोग को याद रखना है, दैट यू हैव टू मेमोराइज, राइट। du विल बी इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी, और ये चीज हम लोग टी डी एस इक्वेशन में भी पढ़े थे। अब यहाँ पर तो चूंकि हम लोग इंटरनल एनर्जी के केस में देख चुके हैं, अब हम लोग देखते हैं एंथैल्पी के केस में। तो एंथैल्पी के लिए आप लोगों ने पढ़ा है, ये आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था कि एंथैल्पी इज इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इनटू वॉल्यूम, राइट। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा, du प्लस पी डी वी, मल्टीपल रूल लगेगा यहाँ पे, प्लस वी डी पी, ये चीज बन के आता है आपका एंथैल्पी के लिए। तो आप लोग को याद रखना है ये एंथैल्पी वाला टर्म के लिए, और du वाला आपको याद रखना है जो है टी डी एस माइनस पी डी बी, ये दो इक्वेशन यहाँ से बन करके आता है। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि ये वैल्यूज और कैसे हम लोग एक्सटेंसिवली यूज करते हैं। तो डी का जो अभी वैल्यू आया है उसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। देखिए डी के लिए क्या आगे बनेगा वही यहाँ पे। तो डी क्या है जी, डी अभी जस्ट हमने देखा था, और उसके लिए डी के वैल्यू को यूज कर रहे हैं। डी अभी जस्ट आया था, तो डी प्लस पी डी आया था। डी के लिए हम लोगों ने पढ़ा है टी डी एस माइनस पी डी वी, ये होता है डी प्लस पी डी वी के लिए हमने दो बार डिफ्रेंशिएट किया था, तो था पी डी वी प्लस वी डी पी, ये चीज आ गया। ये आपका हो गया डी एच इक्वल टू डी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी, और डी के लिए एक हमने डेरिवेशन निकाला था, वो वैल्यू हमने यहाँ पर पुट किया है, और ये वैल्यू ऑलरेडी है, करेक्ट। अब देखते हैं आगे क्या बनता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पी डी वी और ये पी डी वी दोनों आपस में क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डी एच का वैल्यू बन करके आता है वो है टी डी एस प्लस वी डी पी, राइट। तो इस तरीके से वी हैव डेराइव्ड डी यू एंड डी एच। डी यू भी हमें मिल गया है और डी एच भी हमें मिल गया, यानी चेंज इन internal energy and change in enthalpy we have derived here, right? Now we will see what is the Helmholtz function and what is the Gibbs function. तो हम लोगों ने f के लिए देखा था, यहाँ पर देखिए df क्या है, df u माइनस ts। अब अगर हम df करेंगे तो क्या होगा, du माइनस टी डी एस, फिर माइनस ऑफ एस डी टी, ये f इक्वल टू यू माइनस टी एस है, f इक्वल टू यू माइनस टी एस। अब उसको लेकर के आगे बढ़िए, f हमने पढ़ा था f इक्वल टू यू माइनस टी एस। अब क्या करना है, इसको आप df लेकर के चले, डिफरेंशिएट करिए, तो क्या होगा, df इक्वल टू डी यू माइनस टी डी एस माइनस ऑफ एस डी टी, मल्टीपल रूल लगा है, करेक्ट। अब ये डी यू माइनस टी डी एस, डी यू माइनस टी डी एस, ये अभी जस्ट आपने पढ़ा है, क्या है डी यू माइनस टी डी एस, क्या होगा जी, ये आपका पी डी वी के बराबर है, तो माइनस हो गया पी डी वी, अभी जस्ट हमने पढ़ा था, माइनस ऑफ एस डी टी, माइनस ऑफ एस डी टी, करेक्ट। उसी तरीके से जब हम डी एफ कैलकुलेट कर लिए हैं, तो हम देखते हैं डी जी क्या बन करके आता है। तो डी जी के वैल्यू हो जाएगा, डी जी का फॉर्मूला होता है एच माइनस टी एस, ये देखिए आप, जी का फॉर्मूला एच माइनस टी एस, एच इक्वल टू ये क्या है, जी इक्वल टू एच माइनस टी एस, तो एच माइनस टी एस होगा, तो डी जी क्या होगा, डी एच, ये हो जाएगा वैल्यू आपका। मतलब यहाँ पर भी पार्शियल डिफरेंशिएशन आप कर रहे हैं और मल्टीपल रूल लगा रहे हैं, तो डी जी क्या हो जाएगा, तो डी जी हो जाएगा आपका डी एच माइनस टी डी एस माइनस ऑफ एस डी टी, और डी एच माइनस टी डी एस ये अभी हम लोगों ने पढ़ा था, क्या था ये, डी एच माइनस टी डी एस, यहाँ से देखो, यहाँ से क्या बन जाएगा, डी एच माइनस टी डी एस क्या बनेगा, वी डी पी। यहाँ पर हमने फर्स्ट वाली इक्वेशन यूज किया था, डी यू वाला, और यहाँ पर डी एच वाला यूज करें, तो क्या बन जाएगा, ये डी एच माइनस टी डी एस विल बी वी डी पी माइनस ऑफ एस डी टी, ये आपका डी जी बन गया। तो चार इक्वेशन हमारे पास बन के आया, देखिए ध्यान से, एक तो आपका डी यू बन के आया था, डी यू, दूसरा बन के आया डी एच ये वाला, तीसरा बन के आया है डी एफ यहाँ से, और फोर्थ बन के आया है डी जी जो कि यहाँ पर है।
ये 4 इक्वेशन हम लोगों ने यहाँ पर डेराइव किया है, राइट। और यही इक्वेशंस कहलाता है गिब्स रिलेशंस। क्या कहलाएगा ये? ऑल दीज रिलेशंस आर कॉल्ड एज गिब्स रिलेशन। ये सारे रिलेशन को एक साथ अगर हम लिखते हैं तो क्या होगा? तो गिब्स रिलेशंस विल बी, so here we can write as the Gibbsian relations which we have derived with respect to other relations or with respect to first law and second law of thermodynamics. So गिब्स रिलेशन में सबसे पहले हमने चेंज इन इंटरनल एनर्जी पढ़ा था, उसके बाद चेंज इन एंथैल्पी पढ़ा। ये चारों फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, डीएफ और फिर डीजी, ये चारों फॉर्मूला याद रखना है। साथ में चारों मेथड्स को भी याद रखना है कि किस तरीके से इसको हम डेराइव किए थे। तो डी यू का वैल्यू हुआ था आपका टी ds माइनस पी डी बी, याद रखना है ये चारों फॉर्मूला। और 4 आएंगे मैक्सवेल के लिए, तो ये 8 फॉर्मूला आपको याद रखना है। dh का वैल्यू हो जाएगा टी डी एस प्लस बी डी पी। थोड़ा कंफ्यूजन वाला है बट कोई बात नहीं, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद आ जाएगा। पी डी बी माइनस एस डी टी, और डी टी का वैल्यू है वी डी पी माइनस एस डी टी। ये चीज है, ये 4 चीज इसको हम लोग बोलते हैं गिब्स रिलेशंस। तो दिस इज कॉल्ड द गिब्सियन रिलेशंस, एंड विथ रिस्पेक्ट टू गिब्सियन रिलेशंस or with respect to first law and second law of thermodynamics, we will derive the Maxwell relation। तो सेकेंड हमारा होगा मैक्सवेल रिलेशन कैलकुलेट करना। लेकिन मैक्सवेल रिलेशन के पहले हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होता है। एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होता है, और इस डिफरेंशियल की हेल्प से हम लोग गिब्स रिलेशन को लेंगे और मैक्सवेल रिलेशन को कैलकुलेट करेंगे। करेक्ट। तो मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स रिलेशंस में हम लोगों के पास कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जिसको डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी एटसेट्रा। बट देयर आर सम अदर प्रॉपर्टीज विच कैन नॉट बी डायरेक्टली कैलकुलेटेड और कैन नॉट बी डायरेक्टली मैनिपुलेटेड। सो to calculate or to derive the relationship with respect to all these functions, we will have to go for Gibbsian relation as well as Maxwell relations, and for that we have studied the Helmholtz function as well as Gibbs function, right? So with respect to those Helmholtz function and Gibbs function, we have derived 4 kind of Gibbsian relations, that is du, this is called first Gibbs relation, this is called first Gibbs relation, this is called second, this is called third, and this one is called fourth। आप इसको फोर्थ नहीं बोल सकते हैं, इसको थर्ड नहीं बोल सकते हैं, इसको आप फर्स्ट नहीं बोल सकते हैं, सबका अपना नाम है। फर्स्ट गिब्स रिलेशन अगर आपको लिखा रहे तो आपको यही इक्वेशन होगा। सेकेंड गिब्स रिलेशन लिखा रहे मतलब यही वाला होगा। थर्ड गिब्स रिलेशन मतलब डीएफ, फोर्थ मतलब डीजी की बात है, सेकेंड मतलब डीएच, फर्स्ट मतलब डीयू की बात है यहाँ पर। तो स्पेसिफिक नाम है सभी का, फर्स्ट गिब्स, सेकेंड गिब्स, थर्ड गिब्स एंड फोर्थ गिब्स, ये आप लोगों को याद रखना है, राइट। अब हम लोग देखते हैं कि इसका हेल्प लेकर के मैक्सवेल रिलेशन हमारा क्या आता है। लेकिन मैक्सवेल के पहले हम लोग थोड़ा सा एग्जैक्ट डिफरेंशियल और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। अगर ये दो चीज को हम लोग पढ़ लेते हैं तो ये काम हमारा आसान हो जाएगा। करेक्ट। देख लेते हैं सबसे पहले कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होता है। आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे बट फिर भी देखते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एग्जैक्ट डिफरेंशियल। प्रिंसिपल एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होता है? सपोज करो, समझना बात को, सपोज करो आपके पास कोई 3 फंक्शन दिया हुआ है, या फिर जहां पर एक प्रॉपर्टी है जेड, कोई एक प्रॉपर्टी जेड है, कुछ भी है, जेड हो सकता है आपका इंथैल्पी है, जेड हो सकता है एंट्रोपी हो सकता है जेड आपका इंटरनल एनर्जी है। समझना बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। कोई भी आपका एक प्रॉपर्टी है जेड, हम किसी भी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी मतलब अभी सारा देखे थे, टेम्परेचर, प्रेशर,
वॉल्यूम, इंथैल्पी, एंट्रोपी, उसी टाइप से जेड कोई एक प्रॉपर्टी है जो कि दो चीज पे डिपेंड करता है, दो के ऊपर है। कौन सा है आपका? एक्स और वाई के ऊपर है। हो सकता है कि अगर एंट्रोपी की बात कर रहे हैं तो ये फंक्शन ऑफ टेम्परेचर और वॉल्यूम का हो, मे बी। हो सकता है इंथैल्पी की बात कर रहे हैं तो इंथैल्पी आपका U प्लस पी डी बी होता है। हो सकता है कि आपका प्रेशर हो, वॉल्यूम हो, एंट्रोपी हो, कुछ भी हो सकता है। तो आप ये समझ लो कि जेड एक प्रॉपर्टी है जो कि दो अदर फंक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव होता है, ये आपको याद रखना है। मैथमेटिक्स में आता है, ये याद रखना है। क्या होता है पार्शियल डेरिवेटिव? इस कंडीशन में अगर एक प्रॉपर्टी दो प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंडेंट है तो इन दैट केस पार्शियल डेरिवेटिव विल बी डेल जेड डी जेड। वो होगा आपका उसका पार्शियल डेरिवेशन एक्स के साथ। जब x के साथ ले रहा होगा तो y आपका कांस्टेंट होगा और यहाँ आ जाएगा dx प्लस ये डेल जेड अपॉन डेल वाई होगा। डेल जेड अपॉन डेल वाई, एक बार जेड को हम x के साथ लिए हैं, अब हम जेड को y के साथ लेंगे। जब y के साथ लेंगे, x के साथ लिए तो y कांस्टेंट, जब y के साथ लेंगे तो यहाँ पे x कांस्टेंट होगा। और यहाँ डेल y है तो यहाँ पर dy आ जाएगा। यहाँ डेल x था, यहाँ dx आ जाएगा। ये आपका फॉर्मूला है, मैथमेटिकल फॉर्मूला है, ये याद रखना है आपको। जब एक प्रॉपर्टी दो अदर प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंडेंट हो, उस कंडीशन में इसका पार्शियल डेरिवेटिव dz इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स कॉन्स्टेंट वाई और डेल जेड अपॉन डेल वाई एट कॉन्स्टेंट एक्स, ये आपका फॉर्मूला बनता है। करेक्ट? ये होगा आपका प्रिंसिपल। अब सपोज करो ये जेड जो था इसको हम लिख सकते हैं, इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो यहाँ पर मान लो कि आपका ये जेड है, ये आपका डी जेड इक्वल टू हो गया एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। आपने पार्शियल डेरिवेशन पढ़ा होगा, ये आपने 11th या 12th में पढ़ा होगा, वहां से आता है डी जेड इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। जहां पर एम है, यहाँ पे m है आपका डेल जेड, ये वाला जो है ना, इसी को हमने लिख दिया, ये dz है, इसी को मैंने लिख दिया है इक्वेशन m dx प्लस n dy। मैंने लिखा है इसको, मतलब दूसरे फॉर्म में लिख दिया। किसको? इस इक्वेशन को लिखे। तो चूंकि ये आप दोनों को इक्वल करो तो dx के साथ ये dx हो जाएगा, तो m क्या होगा? तो m आपका ये वाला बनेगा। ये dy है, dy आपका dy के साथ रहेगा, तो n क्या हो जाएगा? तो n होगा डेल जेड अपॉन डेल वाई एट कांस्टेंट x। दोनों को हमने क्या किया? कंपेयर किया। तो m हो जाएगा आपका डेल जेड अपॉन डेल x एट y और n हो जाएगा आपका डेल जेड अपॉन डेल वाई एट x। तो आपको सिर्फ ये वाला याद रखना था कि एक z है जो कि फंक्शन x और y का है, पार्शियल डेरिवेशन की है, और इसी को हमने m dx प्लस n dy में लिखा। दोनों का आप इक्वल करेंगे। जब आप दोनों के इक्वल कर रहे हैं तो इस कंडीशन में क्या हो गया है कि इक्वल करने में m आपका डेल जेड अपॉन डेल x एट y बना है, n आपका डेल जेड अपॉन डेल वाई एट x बना है। ये दो चीज बना है, ये आया है। करेक्ट? इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये याद रखें तो भी आप यहां तक पहुंच जाएंगे। अब यहां पे समझना, ये जो डेल एम अपॉन डेल वाई है, ये जो अब हम डेल एम अपॉन डेल वाई कैलकुलेट करेंगे कांस्टेंट एक्स पे, तो क्या हो जाएगा? तो समझना, यहाँ पे अगर हमें कैलकुलेट करना हुआ डेल एम अपॉन डेल वाई एट कांस्टेंट एक्स, क्या करेंगे? डेल अपॉन डेल वाई, जो m का वैल्यू है, m क्या है? डेल जेड अपॉन डेल एक्स है, तो यहाँ पे लिख देंगे डेल जेड अपॉन डेल एक्स। करेक्ट? डेल जेड अपॉन डेल एक्स एट y, और ये टोटल हो गया आपका x। क्या बनेगा ये वैल्यू? ये बन जाएगा आपका दिस वन। और डेल एन अपॉन डेल एक्स ऑफ y करेंगे तो डेल अपॉन डेल एक्स तो है ही आपके पास, ये डेल अपॉन डेल एक्स आपका रहेगा ही। n का वैल्यू ये n है, ये n डेल जेड अपॉन डेल वाई यहाँ रख दो। n का वैल्यू आप रखिए डेल जेड अपॉन डेल वाई एट कांस्टेंट x, और फिर से बाहर क्या हो जाएगा? बाहर क्या हो जाएगा? चूंकि y है तो ये हो गया y। क्या बनेगा ये वैल्यू? तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल
वाई बन जाएगा, वही है आपका यहाँ पे, करेक्ट। तो ये दो चीज है, ये दोनों चीज को आपको याद रखना है। अब देखते हैं आगे इसका रिलेशन क्या होता है। तो अगर इस तरीके से आप कर पा रहे हैं तो अब यहाँ पे समझना, सिंस जेड इज ए प्रॉपर्टी विच इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, राइट, सो देयर फॉर टू रिलेशंस अबव आर आइडेंटिकल। अगर जेड एक प्रॉपर्टी है, क्या है जेड, क्या है आपके पास, जेड एक प्रॉपर्टी है। आप लोग को याद होगा मैंने यूनिट नंबर 1 में बताया था कि जो भी प्रॉपर्टी होगा वो आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। याद है किसी को, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है प्रॉपर्टी, मैंने ये बताया है, बताइए कोई। और बताया सर। जी, प्रॉपर्टी आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। और यहाँ पर चूंकि जेड एक प्रॉपर्टी है, तो जेड अगर एक प्रॉपर्टी है तो ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा, इसको होना होगा। और अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा तो आपको आपके पास क्या मिलेगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल का कंडीशन होता है डेल एम अपॉन डेल वाई एट एक्स विल बी इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स एट वाई। अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। समझना मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ। कहीं पर भी अगर हम थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी की बात करते हैं और अगर वो जो भी प्रॉपर्टी है वो एक thermodynamic property है which is exact differential, then in that case del m upon del y at x will be equal to del n upon del x at y। ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। क्या मतलब इसका, इसका मतलब अगर कोई भी एक प्रॉपर्टी में अगर ये वाला कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाता है, अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाता है, सेटिस्फाई यस, अगर सेटिस्फाई कर गया तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल हुआ। अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा, करेक्ट। सेटिस्फाई किया यस एग्जैक्ट, नो इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। So it is important relation for partial derivatives and is used to test a function whether it is an exact or inexact differential, जो कि आपको यहाँ पर मैंने बताया है। So an exact differential function is always a property or point function। तो आप लोग एक चीज आप लोग को मैंने यूनिट नंबर 1 में ही बताया था कि अगर कोई एक प्रॉपर्टी है, क्या होगा वो, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा। और अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा तो ये आपका पॉइंट फंक्शन है। जैसे जिसमें कि एक एग्जांपल था, एग्जांपल क्या बताए थे, इंटरनल एनर्जी, एग्जांपल इज इंटरनल एनर्जी दैट इज यू। ये क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, प्रॉपर्टी है, और साथ में ये पॉइंट फंक्शन है। बात समझ आई, एनी डाउट हियर, बताइए, किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताइए यहाँ तक। इफ देयर इज नो डाउट देन वी विल मूव फर्दर, राइट। अब इसका हेल्प लेकर के हम लोग क्या करेंगे, तो मैक्सवेल रिलेशन कैलकुलेट करते हैं। क्या करेंगे आप, कैलकुलेट मैक्सवेल। आसान है, कुछ है नहीं, एक बार देखिएगा आप लोग ध्यान से तो समझ में आ जाएगा। देखना थोड़ा गौर से, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, समझना कैसे आसान हो जाता है ये। तो सबसे पहले हम लोग गिब्स का रिलेशन 4 देखे थे, ये याद होगा आप लोग को। ये अभी जस्ट हमने 4 गिब्स रिलेशन देखा था, याद है आप लोग को या नहीं है। जहाँ पर कि द इक्वेशन दैट रिलेट्स द मैक्सवेल रिलेशन, कोई पूछेगा क्या होता है, तो ये एक इक्वेशन है जो कि रिलेट करता है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ प्रेशर, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी, which is compressible fluid are called as Maxwell relations, करेक्ट। तो दी 4 गिब्स रिलेशंस आर, ये आपका 4 गिब्स रिलेशन है जिसको अभी मैंने नाम दिया था फर्स्ट, दिस वन इज सेकेंड, दिस वन इज थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ, करेक्ट। अब चूंकि ये एक प्रॉपर्टी है, क्या है, प्रॉपर्टी है, अगर सिंस यू एच एफ एंड जी आर द प्रॉपर्टीज, देयरफॉर it will be a point function and the above relations can be expressed in the form this one। मैंने आप लोग को बताया था अभी जस्ट, क्या हो जाएगा यहाँ पर, सपोज करिए एक प्रॉपर्टी है, उसको जेड के टर्म में लिखें तो डी जेड इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई होगा।
और अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो रहा होगा तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल अगर होगा तो ये वाला प्रॉपर्टी को, ये वाला इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। एग्जैक्ट डिफरेंशियल चूंकि एक प्रॉपर्टी है, ये क्या है, प्रॉपर्टी है। जब अगर ये प्रॉपर्टी होगा तो क्या होगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा। अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो रहा होगा, अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो रहा होगा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। करेक्ट। अब dz इक्वल टू इतना लिखे, क्या करना है आपको कि du आपके पास है यहाँ पे du, सपोज du है और ये du का वैल्यू लिखा हुआ है d ds माइनस पी टीवी, और आपके पास इक्वेशन है dz, ये वाला कॉमन रहेगा, dz इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। दोनों को कंपेयर करो। जब आप ये दोनों को कंपेयर कर रहे होंगे, जब दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, कुछ वैल्यू मिलेगा। क्या मिलेगा, z इक्वल टू यू बन के आ गया, करेक्ट, m इक्वल टू टी बन गया यहां से, और dx आपका क्या बन गया, ds, ठीक है, और n क्या बन गया आपका माइनस पी, n आपका माइनस पी बन गया, और यहाँ पे x इक्वल dx इक्वल टू क्या बन जाएगा यहाँ से, फिर ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, करेक्ट, ये एन डी वाई है, और डी वाई क्या बन जाएगा यहाँ से, डी वाई विल बी इक्वल टू डी वी। ये आप कंपेयर करने से यहाँ से बना है, ये दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर भी आप डी जेड इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई लिखेंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे। थर्ड में जाएंगे, वहां पर भी आप डी जेड इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई और फिर माइनस पी डी वी माइनस एस टी टी से कंपेयर कर रहे होंगे, दोनों के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर रहे होंगे। इस तरीके से कुछ वैल्यू बन करके आएगा, ठीक है। अब साइक्लिक रिलेशन अप्लाई करो, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई एग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो डेल एम अपॉन डेल वाई एक्स, और ये बनेगा, क्या हो जाएगा, आप समझना बात को। अब हमें मैक्सवेल रिलेशन कैलकुलेट करना था। फर्स्ट में आपके पास है du विल बी इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी। इसका हेल्प लेकर के, ये गिब्स है, दिस इज कॉल्ड गिब्स वन, ये है आपका गिब्स फर्स्ट रिलेशन, ये गिब्स का फर्स्ट रिलेशन है। इसका मैक्सवेल फर्स्ट रिलेशन कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट है तो डेल एम अपॉन डेल वाई एक्स इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स वाई होगा। तो अब कंपेयर करो यहाँ से, जहां पर m होगा वहां पर यह m इक्वल टू टी है तो क्या हो जाएगा वैल्यू, डेल टी। डेल एम है तो डेल एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डेल एम तो ये हो जाएगा डेल टी, तो डेल टी अपॉन ये डेल वाई है लिखा हुआ, डेल वाई की वैल्यू क्या है आपका, डीवी है यहाँ, ये हो जाएगा डेल वी, करेक्ट। ये यहाँ पर x है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका s हो जाएगा, ये dx इक्वल टू ds था तो x हो जाएगा आपका s, तो ये हो जाएगा s विल बी इक्वल टू क्या बनेगा, डेल एन अपॉन डेल एक्स, तो डेल एन क्या हो जाएगा यहाँ से जी, डेल एन इक्वल टू डी पी, माइनस का साइन है बाहर आ जाएगा तो डेल पी अपॉन डेल एक्स का मतलब डी एस, तो यहाँ हो जाएगा अपॉन डी एस, और यहाँ पे क्या है y किसके इक्वल है आपका, y आपका v के इक्वल है तो ये हो जाएगा v। इस तरीके से हमारा गिब्स का हेल्प लेकर के और एग्जैक्ट डिफरेंशियल का हेल्प लेकर के मैक्सवेल का फर्स्ट रिलेशन बना है जो कि यहाँ दिया हुआ है। दिस इज द मैक्सवेल फर्स्ट रिलेशन। तो मैक्सवेल फर्स्ट रिलेशन क्या आ गया आपका, डेल टी अपॉन डेल वी एट एस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल पी अपॉन डेल एस एट बी। इसी तरीके से आपको क्या करना है, आपका टास्क क्या रहेगा समझना। एक मैंने बता दिया, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा, मैं दोबारा बता रहा हूं दूसरे के लिए। दूसरा वाला क्या है जी, तो दूसरे कंडीशन में हम लोग लिखते हैं, मान लो यहाँ पर कि dz इक्वल टू एम डी एक्स है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, हम इसको लेकर के चलते हैं। दिस इज सेकेंड गिब्स रिलेशन। क्या इक्वेशन, तो dh इक्वल टू है आपके पास टी डी एस प्लस वी डी पी, ये दो रिलेशन दिया है। इस क्योंकि ये प्रॉपर्टी है, अगर ये एक प्रॉपर्टी है तो क्या होगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा।
अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा तो ये वाला कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ये इक्वेशन और ये वाला एग्जैक्ट डिफरेंशियल वाला इक्वेशन को लेकर के हमें कहाँ पर आना है, यहाँ आना है। ये वाला चीज हमें डेराइव करना है, ये प्रूफ करना है कि क्या ये होता है या नहीं। अगर हो रहा है तो हमें याद रखना है कि मैक्सवेल का सेकेंड रिलेशन क्या है। करेक्ट। कंपेयर करो। जेड इक्वल टू क्या है आपके पास, यहाँ एच है। देखो तो ध्यान से, जेड इज इक्वल टू क्या बन के आ गया, एच। एम इक्वल टू टी, एम इक्वल टू टी। कंपेयर कर रहे हैं, ये दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं आपस में। और x इक्वल टू क्या हो गया आपका, s। n इक्वल टू हो गया आपका v। y इक्वल टू हो गया p, y इक्वल टू p। करेक्ट। अब इसको लेकर के हमें कहां पर पुट करना है जी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल वाला इक्वेशन में यहां पर पुट करना है। अगर यहां पुट करेंगे तो हम यहां पहुंच जाएंगे और इसको बोलते हैं मैक्सवेल सेकेंड रिलेशन। सेकेंड रिलेशन लीड्स टू क्या बनेगा, डेल एम अपॉन डेल वाई। एम मतलब टी, क्या बन जाएगा, डेल एम अपॉन डेल वाई है, एम की जगह टी हो जाएगा तो डेल टी अपॉन डेल वाई, वाई की जगह पी हो जाएगा तो डेल पी, डेल टी अपॉन डेल पी। एट कांस्टेंट एक्स था, एक्स की जगह पे एस रखेंगे तो ये हो गया एस, विल बी इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, एन मतलब वी यानी डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल एक्स मतलब डेल एस, एक्स मतलब एस, और वाई, वाई मतलब पी एट कांस्टेंट पी। बताइए मुझे क्या ये रिलेशन और ये रिलेशन दोनों सेम है। देखो डेल टी अपॉन डेल पी एट एस विल बी इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एस ऑफ पी, डेल वी अपॉन डेल एस ऑफ पी। दिस इज कॉल्ड सेकेंड मैक्सवेल रिलेशन, सेकेंड मैक्सवेल रिलेशन। ये चीज हमने यहाँ पर डेराइव किया। कैसे करते हैं, तो ये सारे आपके पास प्रॉपर्टी दिया रहेगा गिब्स का चार रिलेशन, ये चारों को आप क्या करेंगे, इक्वल करेंगे किसके साथ, dz के साथ। यानी ये चारों इक्वेशन dz इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई होगा। कोएफिशिएंट को इक्वल करिए, कोएफिशिएंट को इक्वल करने के बाद आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल का जो फॉर्मूला ये वाला है इसमें पुट करिए सारे वैल्यू को, तो आपके पास चार रिलेशन बनेगा। ये चार रिलेशन कहलाता है मैक्सवेल रिलेशन, मैक्सवेल रिलेशन। तो अब तक हमने क्या देखा है जी, तो so far we have studied about 4 Gibbs relation and 4 Maxwell relations. These derived relations are called the first, second, third and fourth Maxwell relation respectively, and these are extremely important in thermodynamics and provide means of determining the change in entropy. Correct? अब ये चारों को मैंने एक टेबल बनाया है और एक टेबल में पुट किए हैं। चार को हमने टेबल बनाया है और उसको पुट किए, क्या किए हैं, तो सबसे पहले गिब्स का चार रिलेशन होता है और मैक्सवेल के चार रिलेशन होते हैं। ये आपका गिब्स का फर्स्ट को डिनोट कर रहा है, ये गिब्स सेकेंड को डिनोट कर रहा है, गिब्स थर्ड है, ये गिब्स आपका फोर है। तो याद रहे आप इसको, गिब्स फर्स्ट, ये गिब्स का फर्स्ट हो गया और मैक्सवेल का फर्स्ट है। ये आपका गिब्स का सेकेंड रिलेशन है और मैक्सवेल का सेकेंड रिलेशन है। एक बात और दोबारा मैं बता दूं, गिब्स का फर्स्ट रिलेशन इसको या इसको ये को नहीं बोल सकते हैं, ये प्रॉपर नाम है। आपके पास इक्वेशन में लिखा रहेगा, एग्जाम में अगर आपसे पूछता है कि बताइए गिब्स थर्ड रिलेशन, या फिर आपसे बोलता है मैक्सवेल सेकेंड रिलेशन, तो आप इतना ही लिखा रहेगा। तो गिब्स थर्ड रिलेशन मतलब ये वाला। अगर आपसे बोलता है मैक्सवेल सेकेंड रिलेशन, तो मैक्सवेल का सेकेंड रिलेशन ये वाला है। ये प्रॉपर आप लोग को याद होना चाहिए। चार क्या है, सबसे पहला आपका du है, फिर dh है, फिर df है और dg है, ये याद रखिए। करेक्ट। और उसके अकॉर्डिंग हम लोग मैक्सवेल अभी जस्ट डेराइव किए थे। कहाँ से किए थे, dz इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई और डेल एम अपॉन डेल वाई ऑफ एक्स। ठीक है। इस तरीके से वी हैव स्टडीड अबाउट गिब्स एंड मैक्सवेल रिलेशन। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।